Vande Mataram students, so today we're gonna revise the chapter 1 called as rational number of class 8th maths. So हम लोग first of all revise करेंगे what are the rational numbers are. So a number is called a rational number if it can be expressed in the form p by q where p and q are integers. Q should be greater than 0. Okay, so any number which we write as p by q format, which mean for example 2 by 3, let it p and let it q. So ये क्या हुआ? Rational number. And the condition is that कि q should be greater than 0. If q is less than 0 या फिर we say it's 0, then what happen? If for example 2 by 0, then it goes to infinity. It's a not defined, we know that. So that's why it's needed that q must be greater than 0. Then next point is it includes all natural numbers, whole numbers and integers. So rational number क्या होते हैं? That numbers which include natural numbers, whole numbers and integers, negative or positive. Okay, for example 1 by 2, 4 by 3, 5 by 7 and 1. Why we write a 1 here? Because we know that 1 by 1 is also a rational number, but 1 by 1 का value 1 ही होता है, so that's why we write only 1. So it's also a form of a rational number. So 1 हमारा natural number भी है, whole number भी है, and it's a rational number, even the integer it is. Okay, so we will study this diagram. So what it represent? The first circle include natural numbers which are 1, 2, 3 and so on. The next is include whole number. So इस सर्कल के अंदर ये सर्कल भी इंक्लूड होता है, which mean whole number plus natural number. Whole numbers are what? 0 plus natural number. 0 plus natural numbers are the whole number. Then coming to the next circle, which is for integers. So what it includes? The whole number circle and the natural number circle. So integers वो होते हैं जो 0 और नेचुरल नंबर्स हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं. ओके, इसके अलावा जो भी नंबर लाइन पे हम निगेटिव इंटीजर्स शो करते हैं, निगेटिव नंबर्स को हम शो करते हैं, दे आर एज इंटीजर्स. देन कमिंग टू द रैशनल्स, what are the rational numbers are? Rational numbers are what? Integers, whole number plus natural number. थोड़ी ऊपर हमने explanation दी थी that includes all natural numbers, whole numbers and integers. So what are the rational numbers are? 2 by 3, 1 by 2, minus 8 by 2, या फिर इस फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में जो नंबर होते हैं, मतलब रैशनल नंबर इन सभी सर्कल्स को इंक्लूड कर रहा है. सो व्हाट आर द रैशनल नंबर? दे ऑल आर रैशनल नंबर. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, natural number, all positive integers. They are 1, 2, 3 and so on. They are the positive integers and they are known as a natural number. Then coming to the whole number, it's 0 plus natural number as we seen here. Okay, natural number plus 0 is a whole number. Then integer, integers are natural number plus 0 plus negative numbers. In this circle we have shown this, that integers are negative, 0 plus positive. Now we will study about the properties of a rational number. The first one is the closure property. So what is it? The closure property is, this shows that the operation of any two same types of the numbers is also the same type. For example, अगर हम लोग लेते हैं 2 plus 3, so what it represent? ये भी whole number है, ये भी whole number है, ये भी integer है, ये भी integer. इनका addition is a 5, which is also whole number, which is also an integer. Okay, which is also a whole number. So that how we represent it. हम लोग अब whole number, integer और rational numbers को इसे separately देखेंगे. So if p and q are the two whole numbers. Okay, p and q अगर हम two whole numbers पकड़ेंगे, then what happen? First of all, whole number for addition. We will check whole numbers for addition. So our examples are 0 plus 2. Our examples are 0 plus 2. So in this we know the answer is 2. We know that the answer is 2. 0 is a whole number, 2 is a whole number, and again our answer 2, which is also whole number. Then we will see 2 plus 5. 2 plus 5 is a 7. Whole number and then again a whole number. We got again a whole number. So हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कोई दो
ऐसा ऑपरेशन जो दो टर्म्स के बाद में जो आंसर आता है वो भी उसी टर्म में होना चाहिए. सो होल नंबर की एडिशन भी होल नंबर आ रही है, सो इट इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी. इट इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी. देन subtraction, we will read about a subtraction. Subtraction is 0 minus 2 and the answer is minus 2. Then 2 minus 0, the answer is 2. Then 5 minus 2, answer is 3. And then 2 minus 5, answer is minus 3. So ये दोनों terms तो whole number है, but what about these two numbers? These two numbers are the negative integers, not the whole numbers. So what it represents, that whole numbers for subtraction are not closer, are not closer. Then we will see the third one, which is as multiplication. 0 into 2, it is 0, and 2 into 5, it is 10. So what we concluded here is that this is also whole number and this is also whole number. So multiplication में whole numbers के multiplication का जो answer आता है वो भी whole numbers होते हैं, वो भी whole numbers होते हैं. So it's also closer. Then we will see about division. 0 by 2 is 0. But what about 5 by 2? It's 2.5. We know that जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5. या तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये होल नंबर तो नहीं है. ओके, सो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, पर इनका जो डिवीजन है वो होल नंबर नहीं है. इट्स अ रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर आया. सो व्हाट वी कंक्लूडेड दैट it's not closed. Division is not a closer. So addition is a closer, subtraction is not a closer, multiplication is a closer, and then division again is not a closer. Then next one is for integer. For addition, what are the integers? Are 0 on number line, 0 के left side and right side. जो सारे numbers होते हैं that are negative or positive, all are the integers. Then we will see about addition. Addition is minus 2 plus 5 and answer is 3. Okay, minus 3 by 7 and answer is 5. Okay, so what we concluded कि minus 2 integer है, 5 integer and 3 is also integer. Minus 3, 7 and 5, they are also integer. Sorry, this is 4. These are also integers. So what we concluded here, that addition under integers under additions are closer. Okay, integers under addition are closer. Then we will see for subtractions. Minus 2 minus of minus 5, which mean it gives us minus 2 plus 5. Minus into minus क्या हो जाता है? Plus. ठीक है. So minus 2 into 5, sorry, minus 2 plus 5 is, it's a 3. Okay, it's a 3. Then minus 2 minus 5, 5 minus minus plus and greater number sign. We will apply a greater number sign, which is as 5, 6, 7. Okay, so its answer is a minus 7, which are the integers. Integers की subtraction is also integers, मतलब subtraction भी under sorry, integers of a subtraction is a closure property. Okay, then we will see multiplication. Multiplication is what? Minus 2 into 5 is a minus 10, and then minus 3 into minus 7 is a minus 21. These are also integers. ये भी integer and ये दोनों भी integers है. So multiplication is also closer, but in this division this is not the truth. Okay, so minus 5 by minus 2, we know that 5 by 2 is a 2.5. So minus 5 upon minus 2 is also 2.5, which is a rational number, not a integer. Okay, and minus 2 by 10 is a minus 5. So ये जो है ये integers, ये integer है but ये integer नहीं है. So division is not closed. So what we have concluded from here is integers under addition are closer, under subtraction and multiplication are also closer, but not in the condition of division. Okay, division is not closer. Then talking about the rational numbers. When we talk about the addition of a rational number, it is as minus 4 plus 6, minus 4 upon 3 plus 6 upon 3. It will as, we will add as LCM लेंगे 3 and then minus 4 plus 6, minus 4 plus 6. So it comes as a 2 by 3, which is a rational number. Okay, similarly इसमें भी rational number answer आएगा. So this is what कि addition of a rational number is closer. दो रैशनल नंबर के एडिशन पे हमें जो आंसर मिल रहा है दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. देन अबाउट सब्सट्रैक्शन, LCM is again 3. Okay, then minus 4 minus 6 is minus 10, greater number sign, minus minus plus and greater number sign, minus 10 by 3, which is also a rational number. So under subtraction it's also a closer. Then talking about multiplication,
minus 4 into minus upon 5 into minus 4 upon minus 3. It will as minus 16. 4 4s are 16. Minus into minus plus हो जाएगा. Okay. So it will be plus 16 upon 5 3s are 15. It will as 16 upon 15. Okay. It will be as 16 upon 15. So it is also a rational number. So minus 4 by 5 is a rational number, minus 4 by 3 is a rational number, and 16 by 15 is also a rational number. So this property of a rational number is also a closure. Addition is a closure, subtraction is a closure, and multiplication is also closure. Now talking about divisions, 6 by 0. 6 by 0. We know that anything upon 0, हमने lower classes में till to the 7th class we have learned that anything upon 0 is infinity. Okay, anything upon 0 is infinity. And what about 0 upon 6? It is 0. Okay, 0 upon anything is a 0, but anything upon 0, any number, any integer or any reciprocal upon 0 is infinity. Okay, so 0 is not a rational number. 0 is not a rational number, but we will see that 6 by 2 divided by 1 by 1. What happened? Its answer will be 3. Okay, so what we have concluded here, what we have, 0 is a rational number, but सिंप्लीफिकेशन की बेसिस पर अगर हम 0 by 1 को ऐसे लिखते हैं तो इसका आंसर 0 ही होने वाला है. इस फॉर्म में तो ये रैशनल नंबर है. ओके, बट व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम हियर दैट इट्स नॉट अ क्लोजर. ज़रूरी नहीं है कि आंसर जो है दो रेसिप्रोकल्स का रेसिप्रोकल में ही आए. रेसिप्रोकल में रैशनल नंबर में रैशनल नंबर में आए. सो रैशनल नंबर में आंसर नहीं आया, सो इट्स नॉट अ क्लोजर. सो इन द एंड we will revise that rational number under addition is a closure, under subtraction is a closure, under multiplication is a closure, but not under division. Okay, division is not a closure for rational numbers. Now talking about some properties which is as commutative property, associative property, and distributive property. So first of all, commutative property, we will learn about commutative property which is as p plus q is equal to q plus p. For example, हम लोगों ने लिया है 2 plus 3 and 3 plus 2. We know that 2 plus 3 is 5 and 3 plus 2 is also 5. इन दोनों के ही answer is 5. So what happened? It's a closure property. Okay, commutative law is a closure property for addition. For addition, commutative property right है. Then talking about subtraction, p minus q is equal to q minus p. अगर ऐसा हो तो 2 minus 3 is equal to p minus q, but no. Its answer is minus 1. And its answer is 1. So they are not equal. So we have concluded that p minus q is not equal to q minus p. Means this property is not a closure. Subtraction is not a closure under commutative property. Now we will check out for p into q and q into p. Okay, so 6 into 3 is equal to 3 into 6. We know that 6 into 6 3s is 18 and 3 6 is also 18. So it's also closure. Then for division, p by q is equal to q by p. For example, हमने 1 और 2 नंबर को p and q माना है. So p by q मतलब 1 by 2 is 0.5 and 2 by 1 is 2. So is it a closure? No. दोनों equal नहीं है. So it's not a closure. So for commutative property, addition is a closure, multiplication is a closure, but division and subtractions are not closure. Then we will check the commutative law for the rational number. So for example, हम लोगों ने for addition 4 by 1 plus 4 by 3 लिया है, which is as 4 by 3 plus 4 by 1. तो इसका आंसर क्या होगा? 4 1s are 4, then 3 4s are 12. Okay, then 3, which means it is as 16 by 3. Okay, so it's a rational number. Rational number का आंसर भी rational number आ रहा है, और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिए आंसर भी 16 by 3 आने वाला है. ओके, इसके लिए अगर 16 by 3 आया, सो वी विल ऑल्सो चेक फॉर दिस. इट इज़ एज 4 3s are 12 plus 4. It is as 12 plus 4 upon 3, which is also as a 16 by 3. So we checked it that commutative law for a rational number addition is also a closure. Then we will talk about subtraction, which is as 4 minus 1 upon 4 minus 4 upon 3. Then 4 by 3 minus 4 by 1. We will check the both of this. Okay, 4 by 1 and ye. Okay, so it is a 12 minus 4 upon 3, which is as 12 minus 4 is 8 upon 3. Okay, then about this, we will talk about this here. It is as 4 minus 12 upon
3. So it is a minus 8 upon 3, which are opposites, minus 8 by 3 and 8 by 3. So what we have concluded from here, that subtraction is not a closure for commutative property. Commutative property for subtraction is not a closure. Then for a division, 4 by 1 divide by 4 by 3 or 4 by 3 divide by 4 by 1. Okay, so इसका आंसर होगा, okay, 4 by 1 divide by 4 by 3 and 4 by 3 divide by 4 by 1. So okay, 4 get cancelled and it will as 3 by 1. Okay, and talking about this, 4 by 4 get cancelled and 1 यहाँ आ जाएगा and 3 will be down here, so it will is a 1 by 3. So 3 by 1 and 1 by 3 are the different. So what we have concluded, it is not a closure for commutative property. Addition is a closure, subtraction is not a closure property. Sorry, subtraction is not a closure property. Yeah. Multiplication is a closure. Multiplication is a closure. Addition is a closure. Subtraction and division is not a closure property for commutative law of a rational number. Then coming to the second law or a property, which is the associative law. We know that associative law for addition looks like this, for multiplication, then for division and then for subtraction. So हम इसे apply करेंगे rational numbers के लिए. So for associative law for a rational number is 2 by 3 plus 4 by 3 plus 6 by 3. ये equal है कि हम check करेंगे दोनों के separately. Okay, so we will see here as 2 by 3 plus इसका addition क्या होगा, नीचे LCM होगा 3 और 4 plus 6 is 10. Okay, so 2 by 3 plus 10 by 3, again it's LCM is 3 and 12. Okay, 12 by 3, which mean answer is 4. Okay, which mean the answer is 4. Then talking about this here, we will decide, sorry, then 2 by 3 plus 4 by 3. Okay, LCM hoga 3 and 2 plus 4 plus 2 is 6. Okay, then again 6 plus 3, so it will as 3 upon 12. Again its answer is a 4. So associative law for a rational number for addition, associative law for a rational number for addition is a closure. Then we will talk about subtraction. 2 by 3 minus 4. Okay, so how does it work, that 4 by 3 has an answer of near about 1.33. Okay, and its answer is minus 2. Okay, and 2 by 3. And when we talk about this is 2 by 3 minus 4 by 3 minus 2. Okay, so what happened here, they are not equal. If we solve it, they are not equal. So subtraction is not a closure property for associative law. And then for multiplication, जैसा कि हमने पहले भी किया था, multiplication property is same as like we have concluded in a commutative property. So associative properties में भी वैसा ही कुछ हो रहा है, so it's also a closure. And talking about P by Q format and Q by P format अगर सेम नहीं होता है, so ये वाला फॉर्मेट भी सेम नहीं है. ऑब्वियसली जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों के आंसर्स अलग आएंगे. सो डिविजन इज नॉट अ क्लोजर. सो फॉर एसोसिएटिव लॉ, addition is a closure, subtraction is not a closure, multiplication is a closure, and division is again not a closure. Then coming to a very main topic, which is a role of 0. For multiplication, division and addition और इसके बारे में subtraction के बारे में अगर हम बात करें, so addition के बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 0 plus p. Okay, so 0 into p, anything into 0 करने पे क्या होता है, आंसर 0 आ जाता है. एडिशन करने पे 0 plus p आंसर वही रहता है. ओके, 0 minus p अगर हम कर दें तो क्या होगा, 0 minus p करेंगे तब भी आंसर वही आने वाला है. ओके, हम बोलेंगे कि माइनस p हो गया, नहीं, ये माइनस p पूरा वैल्यू है. ओके, माइनस p इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, सो माइनस p एंड p minus 0 इज अ p. बट अबाउट डिविजन, 0 upon p, हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया है, दैट एनीथिंग 0 upon anything is 0 and anything upon 0 is goes to infinity, not defined. अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2, ओके, हम लोगों ने 6th क्लास में सीखा है ये, दैट डिविजन इज अ रिपीट सब्सट्रैक्शन. उस बेसिस पे अगर हम 2 by 0 इसे समझते हैं और हम लोग जब इसे डिवाइड करेंगे हियर, लाइक 2 minus 0 it will be 2, then again minus 0 it will again 2, तो क्या होगा कि रिमाइंडर बढ़ता जाएगा. हम इसे चाहे एक बार डिवाइड करें, चाहे 2 बार करें, या फिर मल्टीपल टाइम्स करें, सो आंसर हमेशा रिमाइंडर में 2 ही आने वाला है. सो दिस इज हाउ वी शो दैट एनीथिंग अपॉन 0 इज अ इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इज अ इन्फिनिटी. देन वी विल टॉक अबाउट
द टॉपिक रोल ऑफ 1. सो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिविजन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे. सो anything into 1 for the multiplication process will remain the same in डिवीजन में भी हम एनीथिंग अपॉन 1 करें, मतलब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं तो नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ता. बट व्हाट अबाउट दिस, इसका करने पे नंबर एक प्लस हो जाता है. ओके, जैसे वो a+1 फॉर एग्जांपल 2 होता अगर ये, तो 2+1 3 हो जाता. अब ये 2 होता 2-1 तो नंबर 1 हो जाता. मतलब यहाँ पे डिक्रीज होगा और यहाँ पे नंबर इंक्रीज होगा, और इन दोनों टर्म्स में नंबर सेम रहने वाला है. इन दोनों टर्म में नंबर को कोई इफेक्ट नहीं होगा. देन निगेटिव ऑफ अ नंबर, अगर कोई भी नंबर है उसी का निगेटिव नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर कैंसिल हो जाएगा. ओके, वो नंबर 0 बन जाएगा. दैट इज a माइनस ए. ठीक है, a प्लस ऑफ माइनस ए. फॉर एग्जाम्पल हम 2 प्लस -2 करके देखते हैं. सो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस. ओके, 2 माइनस 2 इज 0. ओके, यानी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तभी तो आंसर 0 आ रहा है. देन टॉकिंग अबाउट a माइनस ऑफ माइनस a, विच मीन ये क्या होगा, a प्लस a, यानी ट्वाइस a हो जाएगा. ओके, सो जैसे कि यही एग्जाम्पल हम अगेन लेते हैं. 2 माइनस ऑफ -2 विच इज एज 4. सो 4 क्या है, 2a ही है. a क्या था, 2 था हमारा. ओके, सो 2 into 2 इज 4. सो इट्स अ 2a. ओके, इट बिकम्स ट्वाइस. देन फॉर मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, it will as minus a square. फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 लेते हैं, 2 इंटू -2. ओके, 2 इंटू -2 क्यों होगा, माइनस तो होगा ही. ओके, देन व्हाट हैपन, 2 2 ज़ा 4. ओके, then talking about a divided by minus a, it will as always the answer 1. How does it happen, we show you. So 2 upon -2. ओके, here it is a -1. अगर हम नेगेटिव नंबर ले तो -1, पॉजिटिव नंबर ले तो सिंपली 1. ओके, सो 2 अपॉन -2 इज 1 by 1. So it's a 1 upon -1, which mean it is a -1. Okay, so that's how we concluded it. So now the last topic is reciprocal of a multiplicative inverse. So what are the multiplicative inverse or a reciprocal is? It is as shown as this type, a by b is b by a. अगर आपको a by b दिया गया है तो उसका रेसिप्रोकल होगा b by a, और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे द नंबर सेल्फ एंड their reciprocal, so the answer will be 1. So 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा 5/4. फॉर एग्जाम्पल 2/3 ले लिया, 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2. ओके, देन distributivity of a multiplication over addition and subtraction for a rational number. So here it is shown as a p into q plus r. So इसमें bracket multiplication होगा, it will as a pq plus pr. Okay, similarly pq minus pr, it's a bracket multiplication. Okay, so we will solve this question. 4/7 into -2/3 minus 1/2. So firstly हम लोग bracket solve करेंगे, -2/3 minus 1/2. So it will be as -4 upon -3 upon 6. 3/2 का LCM होगा 6. So it comes as a -7/6. It comes as a -7/6. -4 -3 is a -7 upon 6. Okay, -7 upon 6. Then हम इसे ब्रैकेट से आउट करेंगे. So what happens, 7 and 7 डिवाइड में है, so they will get cancel. बट ये -7 है और ये 7 है. जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जैसे कि -a और a, so क्या बचेगा, -1. Okay, recently we have studied this property, so it's a -1. So what happened, -1 upon 4, -1 into 4 upon 6 बचा है, so it will be the -4 and 6. और ये 2 3 होता है, ये 2 2 होता है, so it will as a -2/3. Our answer is a -2/3. Okay, then representation of a rational number over number line. So हमने इसे स्टार्टिंग में in a circle represent किया था. Now we will show it as in a number line. So 1 to any number up to infinity goes as a natural number. Then natural number plus 0. Okay, plus 0 is a whole number, and every number on a number line known as a integer. Every line on a number line is a integer. अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं, 0 के लेफ्ट साइड अगर हम जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं. ओके, लाइक दिस.
एंड पॉजिटिव साइड अगर हम लोग जाते हैं तो दे आर एज सॉरी पॉजिटिव नंबर्स, ओके। राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव नंबर। डन। Now our main topic is that how to represent the rational numbers on a number line. Okay, so -1/2. We know the answer of a -1/2 is -0.5. 0.5 किसके बीच में लाई करता है? 1 and 2, but -1 and -2 के बीच में -0.5 लाई करता है. So exact इनके बीच में होगा आपका 0.5, मतलब -1/2. That's how we represent it. Now 3/2. 3/2 we know that 3/2 is when we divide it, 3/2 comes as a 1.5. Where does the 1.5 lie? Between 2 and 3. Exactly between 2 and 3. Okay. So where are the 2? 2 and 3. Here it is. अगर हमें -3/2 देते तो इट्स विल बी -1.5, मतलब -3 और -2 के बीच लाई करता, मतलब ये कहीं यहाँ कहीं लाई करता. ओके. सो नेक्स्ट वन इज अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. ओके. कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर कैसे पता करना? सो व्हाट आई डिड हियर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10. सो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करने पे क्या हो जाएगा? 10/100, 20/100. अगर हम 0 0 कैंसिल कर दे, अगेन इट विल बी 1/10 एंड 2/10. सो 10 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने पे नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा, बट इससे हमें इसके बीच के आंसर्स मिल जाएंगे. ओके. 10/100 को से लेके 20/100 के बीच में हम नंबर लिख सकते हैं 11/100, 12/100, 13/100, 14/100 एंड सो ऑन अप टू 20/100. ओके. देन हमें इनका एग्जैक्ट मीन पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? एग्जैक्ट मीन 1/2 और 2/10 का एग्जैक्ट मीन अगर हमें पता करना हो तो हाउ डू वी find it? We know that the formula of a mean is x plus y upon 2. X plus y upon 2 is the mean formula for a mean. So our numbers are 1/10 plus 2/10. So 2. हमने इसे x समझा और इसे y समझा, ठीक है. So upon 2 it will as 1 plus 2 is a 3 and इसका decimal is a 10. Okay. 1 plus 2 and its decimal is 10 whole upon 2. So its answer is a 3/20. Okay. So the mean of a 1/10 and 2/10 is a 3/20. Got it? Now the last remarks are as, first remark is, if P and Q are two rational numbers, then what happens? दिस इज द P, दिस इज Q, एंड जो हमने बीच में मीन फाइंड किया था, ऑब्वियसली मीन है तो दो नंबर्स के बीच में ही लाई कर रहा होगा. जैसे हमने पकड़े थे 1/10, 2/10, सॉरी 2/10. ओके. एंड इसके बीच में हमारा आंसर निकला 3/20. सो व्हाट हैपन? 1/10 3/20 1/10 से बड़ा होगा और 2/10 3/20 से भी बड़ा होगा. ओके. सो आवर लास्ट रिमार्क एंड लास्ट टॉपिक is there are infinite rational numbers between two rational number. This is a remark. And how do we prove it? कि अगर हम कोई नंबर लाइन होल्ड करते हैं, कोई नंबर लाइन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 0 से 1 2 इस तरह लिया. ओके. सो इसके बीच में हम लोग काफ़ी नंबर्स शो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 0.5 शो किया था, बट 0.51 भी यहाँ शो सकता है, 0.52, 0.53 या फिर 0.511, 0.512, इस तरह नंबर लाइन बढ़ती जाएगी. सो दिस इज हाउ वी प्रूव इट. द रिमार्क 2 इज देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू. The exercise 1.1. So what we will do in the question number 1 is, firstly ये जो टर्म है, ये दो टर्म, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन है, सो 3 और 3 को कैंसिल कर सकते हैं, राइट. तो ये क्या हो जाएगा बाद में? -2/5. सिर्फ यही टर्म. ओके. सिर्फ ये जो टर्म है -2/5 हो जाएगा. देन वो वी विल डू वॉट, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वी नो दैट, ठीक है. तो पहले हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व करते हैं एंड देन एडिशन वाले टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं. ओके. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये 1 और ये 2. सो इसका आंसर क्या होगा? 1/10. पहले वाला क्या था? -2/5. ओके. सो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, बीच में टर्म बचता है 5/2. सो ये वाला टर्म क्या था? -2/5, देन -5/2, then -1/10. ओके. सो 5, 2 और 10 इनके डेसिमल्स हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? दो टर्म और फिर उसे ऐसे जैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सॉल्व करते हैं. ओके. जैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सॉल्व करते हैं, वी विल डू इट लाइक दैट. ओके.
सो क्या थे हमारे टर्म -2/5 + 5/2 ओके, और -1/10 था जिसे हम बाद में करेंगे ओके, +5/2। सो ये कैसे होगा, 5 2 ज़ा नीचे हो जाएगा 10 ओके, एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला ओके। सो 2 × 2 इज़ -4 एंड 5 5 ज़ा +25 ओके। सो 25 + 4 इज़ 29 ओके, sorry, it's a -4 and 25 okay, so minus होगा, so it will be 21/10 okay, it will be 21/10, so 21/10 फिर हमारा ये वाला टर्म बच रहा था जो था -1/10 ओके। व्हाट विल सी है कि डिनोमिनेटर जो नीचे होते हैं डाउन में जो होते हैं वो डिनोमिनेटर ओके, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इसका आंसर क्या होगा, 21 - 1 इज़ 20 और नीचे हो जाएगा 10, सो ये 0 0 कट और आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 2 ओके, सॉरी आंसर आएगा 2, और आंसर फॉर दिस इज दिस क्वेश्चन इज 2 ओके। नाउ व्हाट विल डू, सिमिलरली हमें करना है इस क्वेश्चन में ओके। सो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा था, जैसे कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, इनके ठीक अपोजिट टर्म्स को जब हम ऐड करें तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आना चाहिए 0 ओके। सो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8, तो इन दोनों का आपस में कैंसिल करने पे आंसर 0 आएगा। सिमिलरली अगर ये वाला पकड़े -6/-5 है, विच मीन ये क्या 6/5, यानी 6/5 का एडिटिव इनवर्स होगा -6/5 ओके, -6/5। इसी तरह 19/-6, 19/-6 मतलब क्या, -19/6, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 19/6, -19/6 का एडिटिव इनवर्स होगा 19/6 ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x = 11.5, तो हमें क्या शो करना है, -(-x) = x ओके। सो वी नो दैट -(-11.5) क्या 11/15 क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ओके, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, या फिर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ओके। सो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं ओके, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं ओके। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/15 ओके, -(-x) करने पे ये वापस 11/15 आ जाएगा ओके। नाउ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स क्या होता है कि आंसर 1 आना चाहिए। वी हैव लर्नड अबाउट दिस कि आंसर 1 आना चाहिए। सो इसका क्या -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-13, विच मीन ये हो जाएगा -1/13 ओके। 1/-13 या -1/13 आर सेम ओके। सो दैट्स हाउ हम बाकी के टर्म भी करेंगे, जैसे कि 1/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5, तो 5 गेट कैंसल, सो आंसर विल बी 1 ओके। सिमिलरली ओके, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिक है, सो वी विल सॉल्व इट ओके। सो ये फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर, सो 5 3 ज़ा 15 ओके। माइनस माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या था, हमने पढ़ा था माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पे प्लस हो गया, और 8 7 ज़ा 56, सो 15/56 इसका आंसर है, जिस 15/56 पहले हमने ये निकाल लिया। अब इसका एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 56/15, सो क्या होगा 56 गेट कैंसल एंड 15 गेट कैंसल, आंसर आ गया 1। So that's how it works okay. Now name the property under multiplication used in each of the following, ये है क्वेश्चन नंबर 4 ओके। सो यहाँ पे -4 × 5 × 1 किया गया है, विच इज़ इक्वल टू 1 × 4 × 5 ओके। सो इसमें हमें क्या दिखा गया है, a × b इज इक्वल टू b × a, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन विच इज़ क्लोजर ओके, विच इज़ क्लोजर। नाउ द सेकेंड वन इज़ -13/17 × -2/7 ओके, ये भी सेम है ओके, ये भी सेम है, a × b इज इक्वल टू b × a वाली, मतलब ये भी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ द नेक्स्ट वन, ये क्या है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, ये है हमारा एडिटिव इनवर्स सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या होगा -19 गेट कैंसिल, 29 गेट कैंसिल, सो आंसर होता है 1 ओके। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स जिससे आंसर 0 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जिससे आंसर 1 हो जाए ओके, ये वाला हमें याद रखना होता है।
नाउ हमें बोला है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ओके, दिस इज द ट्रिकी वन क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, रेसिप्रोकल मतलब इसका इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा 16/-7, जिसे हम लोग लिखते हैं -16/7, मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा -16/7। और हमें यहाँ क्या गया है 6/13 को रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से मल्टीप्लाई करना है, विच मीन हमें क्या करना है 6/13 इंटू -16/7। ओके, सो 13 7 और 16 6 ओके। सो ये फ्रैक्शनल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ आगे भी सेम क्वेश्चन है, सो हम लोग सॉल्व करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। ओके, सो नाइन्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। ठीक है, सो हम इस टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने 7th क्लास में फ्रैक्शनल चैप्टर में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है 3 1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसे ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में यही नंबर रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 3 3 9, 9 + 1/3, मतलब ये क्या होगा 10/3। और जब हम 10/3 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर 0.3 आता है, ऑब्वियस है। ओके, सो या मतलब 0.3। ओके, सो ये क्या होगा 0.3, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें पता करना था। आंसर था हमारा क्या 10/3। ओके, जिसका आंसर 0.3 आता है। हमसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा गया है। ठीक है, सो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो नहीं, इसका आंसर ये 0.3 ज़रूर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता 3/10। ओके, 3 फॉर दिस मिस्टेक। 10/3 इज़ 3.3। ओके, 3.3। ओके, और ये 0.33 या फिर 0.3 मतलब 0.33 होता है। ओके, सो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब इसका वैल्यू क्या होता है 3/10। ओके, सो ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओके, ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि 0.3 का एक्सपेंशन क्या होता है, 0.3 का एक्सपेंशन इज़ 3/10, और इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है इंटू 10/3, मतलब 10 गेट कैंसिल एंड 3 गेट कैंसिल। सो this is what it is. Now coming to the next question. Okay, question number 10 is the rational number. Okay, the rational number, sorry, yeah, now we will do the rational number that does not have a reciprocal. Okay, ऐसा कोई rational number है जिसका reciprocal ना हो, बताइए। ओके, ये 1 हो सकता है। ओके, 1/1 इट्स अ रैशनल नंबर। ओके, बट इसका रेसिप्रोकल है कोई नहीं है। ओके, सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11th में अगर हम चलें तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। 0 का कोई रेसिप्रोकल देखा, जैसे कि 1/0 विच इज़ गोज़ टू इन्फिनिटी। हाँ, एनीथिंग अपॉन 0 गोज़ टू इन्फिनिटी, हमने लोअर क्लासेस में सीखा है। सो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 11th का 4th वाला, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x, सिंपली x। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर विल बी पॉजिटिव। ओके, जैसे कि 1/x ले लिया, ये पॉजिटिव में, इसका रेसिप्रोकल x है पर ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो साइन तो वही रहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल पूछा गया। अगर एडिटिव इन्वर्स पूछा जाता तो माइनस हो जाता। ओके, और -1/x 1/-x होता, ना कि सिर्फ -x होता। ओके, सो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव। ओके, नॉट अ नेगेटिव, साइन से इसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, नाउ we will do exercise number 1.2. so what does it is, जैसा हमने सीखा है हम उसे ही रिवाइज कर रहे हैं। ओके, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 एंड -5/6। ओके, 7/4 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ नंबर लाइन, वी विल सी। ये हमारी जैसे कि नंबर लाइन है। ओके, ये हमारी नंबर लाइन है। 7/4 को हम पहले तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 1 एंड देन इट विल बी 4, नीचे आएगा रिमाइंडर 3। सो हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे। ओके, सो 30 ले लिया। 30 के बाद में हम ले लेंगे इसे 6 28, और फिर बचेगा 2, तो हम 5 लेके 20 कम 1.65। ओके, सो आंसर आ रहा है हमारा 1.65।
1.65, आंसर है 1.65। सो नंबर लाइन जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, समझिए यहाँ पे 0 है, मैं आगे वाले नहीं शो करी, ओके। 1 2 3 4 5 एंड हेयर इट इज़ 6, ओके। सो हमें 1.65 बोला, मतलब 1.65 किसके बीच में, 2 और 1 के बीच में लाई करेगा, ओके। सो इस नंबर लाइन को हम थोड़ा सा ब्रॉड करके यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा फॉर एग्जांपल 0 है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा 2 ले लेते हैं, ओके। हमने ब्रॉड कर दिया नंबर लाइन को थोड़ा सा। सो 1.65 इनका ठीक आधा यहाँ पे होगा, ओके। 1.5 मतलब इससे थोड़ा आगे होगा, यहाँ पे होगा 1.6 और 1.7 समझो यहाँ पे, तो 1.6 और 1.7 के एग्जैक्ट बीच में होगा आपका 1.65, मतलब 7/4 यहाँ होगा। 1.65 ही तो 7/4 था, मतलब 7/4 यहाँ एग्जिस्ट करेगा बिटवीन 1 एंड 2, विच मीन 1.5 एंड 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ओके। सो नाउ अगले भी इसी तरीके से सॉल्व करने हमने रैशनल नंबर की लाइन किस तरह शो होती है हमने सीखा है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, ओके। 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, फॉर एग्जाम्पल इट्स 1/2, 0.5 आता है इसका आंसर, जो कि 2 से छोटा है ऑब्वियस है। देन 3/2 इट्स 1.5, जो कि 2 से कम है। या फिर हम कुछ भी जैसे ले लेते हैं हम लोग 3/10 विच इज़ 0.3, या फिर 1/1, ओके। या फिर एक और टर्म्स जो आप जो भी आप चाहें, ठीक है, आप ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, ओके। सो ये हमने इन बिटवीन नंबर्स निकालने सीखे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर इंटू 10 और नीचे भी इंटू 10 कर देते हैं और फिर उसके बीच के नंबर सॉल्व करते हैं। सो ये हमने ये सीखा है, तो इस बेस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 एंड अनदर वन इज़ -3 एंड 5/3, ओके। सो ये भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 से, सो आपको ये होमवर्क में करना है, ओके। और क्वेश्चन है -4 एंड 1/2, सो ये हमने सीखे हैं। इनके इवन हमने मीन निकालने भी सीखे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, ओके। सो हम लोग ये 2-4 नंबर निकाल के देख लेते हैं इसमें, ओके। सो 3/5 और 3/4 हम इंटू 10 अगर कर लें यहाँ पे, इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 30/50, ओके। 30/50 कर लेते हैं। या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इनकी डिनोमिनेटर अगर हम सेम करते हैं तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। सो 3 इस टर्म को से ये वाला टर्म है, इसमें अगर हम लोग इंटू 4 कर दें तो हमारा आंसर क्या होगा, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि जैसे 4 गेट कैंसिल और 3/5 अगेन आता है, लेकिन हमें सॉल्व करने में ईजी बना देता है, ओके। पैटर्न ऑब्जर्वेशन जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले, वो इससे हमें ईजी बना देता है। 3/4 क्या होता है 12/20, इट्स 12/20। हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसे एक बार ऐसे ही होल्ड करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ 3/4, नेक्स्ट वन इज़ 3/4। 3/4 के लिए हमें नीचे 20 करना है, सो यहाँ पे इंटू 5 कर दें, ओके। सो ये हो जाएगा 15/20, ओके। ये हो जाएगा 15/20 और वो क्या था 12/20, ओके। 12/20 15/20 के बीच के आपके कोई भी आप चलिए 10 रैशनल नंबर यहाँ पे बोले हैं। सो 12/20 और 15/20 के बीच में कौन कौन से टर्म हो सकते हैं, 13/20 हो गया, 14/20 हो गया। अब इनके बीच के भी नंबर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 2 ही नंबर हुए, इनके बीच का हम लोग क्या करें। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 13.1/20 लिख सकते हैं, पर ये गलत तरीका होगा, ओके। 13.1/20 अगर हम करें तो ये 13 और 14 के बीच में, यानी 12 और 15 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका ऐसा होगा, हम इंटू 10 कर देंगे, विच मीन ये क्या हो जाएगा 131/200, जो कि 12/20 एंड 15/20 के बीच में ही लाई कर रहा है, पर इसे लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा, ओके। सो दिस इज़ हाउ हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है। सो 1.2 एंड 1.1 ये 2 एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और डू द होमवर्क, ओके।